गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आयुषी सिंह और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज बिजनेस रिसर्च मेथड के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च इज एज वी डिस्कस प्रीवियसली आल्सो। जो रिसर्च है वो एक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक प्रोसेस होता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए। सो दैट इज एन ऑप्शन सी, सो इट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the first step in starting the research process? कि research process को start करने के लिए हमारे पास first step कौन सा होता है? So it is identification of the problem. Okay, again option C. Moving forward to the next question. A common test in research demands much priority है. तो जो common test research होता है वो ज़्यादा priority किस पे demand करता है? So it is in reliability, usability, objectivity or all of the above. So जो common test in research है वो सब पे इन तीनों पे ही priority की demand करता है. So correct option will be option D, all of the above. Next question. Research is only inquiry into the system of knowledge to disapprove or approve or to arrive at new conclusion for the betterment of the existing system. So what type of research is it? It is systematic. कि वो रिसर्च जो रिसर्च होती है ये क्या होती है, एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है किसी भी सिस्टम ऑफ नॉलेज में, ताकि आप वहाँ पे कुछ चीज़ प्रूव कर सको, डिसप्रूव कर सको या फिर किसी नए कंक्लूजन पे पहुँच सको, ताकि जो आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें थोड़ा बेटरमेंट है. तो दैट इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash research is preliminary study of a new problem about which the researcher has little or no knowledge. कि वो रिसर्च जिसमें हम स्टडी करते हैं नई प्रॉब्लम के बारे में जहाँ पे जो हमारा रिसर्चर है उसको बहुत कम नॉलेज होती है या फिर नॉलेज ही नहीं होती है उस टॉपिक के बारे में. सो वी कॉल दैट रिसर्च एज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. दैट इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash follows an approach which is from general to specific. जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच कौन फॉलो करता है? दैट इज ऑप्शन सी, रिडक्शन. रिडक्शन में हम जनरल टू स्पेसिफिक अप्रोच को फॉलो करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dash method consists of studying several individual cases and drawing generalization. इस मेथड में हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस की स्टडी करते हैं और जनरलाइजेशन एक ड्रॉ करते हैं. सो अगेन दिस मेथड इज रिडक्शन मेथड. That is option C. Moving forward to the next question now. The dash research is a primary study of a new problem about which I think we have discussed this previously also. So what type of research? It was exploratory. Next question. An appropriate source to find out descriptive information. कि जहाँ पे हम descriptive information find करते हैं, कौन सा source होता है वो? The source is there is encyclopedia. That is option C. Next question. Dash is a method or technique of exploring or analyzing the life of the social unit. कि अगर हमें किसी सोशल यूनिट की लाइफ को एनालाइज करना है तो उसके लिए हम क्या मेथड अपनाते हैं? ये we call it that method as case study. That is option C. Next question. Information acquired by experience और experimentation is called as. वो information जो हम experience और experiment के थ्रू gather करते हैं उसको क्या बोला जाता है? That is called as empirical. That is option A. Next question. If the independent variable is not manipulated, it is called dash hypothesis testing research. कि जहाँ पे जो आपका independent variable है वो manipulate नहीं हो सकता या नहीं करते जा सकते, तो किस टाइप की hypothesis testing research में आता है? It is common non experimental type. Okay, that is option A. Next question. Dash surveys are used to gather information on a population at a single point in time. कि जहाँ पे हमें single point of time में किसी population के बारे में information gather करना होता है, वहाँ पे हम किस टाइप के surveys को follow करते हैं? वहाँ पे हम follow करते हैं close sectional surveys. That is option A. Next question. Dash is the generation of continuum on which measured objects are located. कि ये so scaling is the generation
ऑफ कंटिन्यूम जहाँ पे हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट्स की कहाँ पे वो लोकेटेड है। दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in business research, attitudinal data obtained from rating scales are often treated as stats data। कि जो बिजनेस रिसर्च होते हैं वहाँ पे जो एटीट्यूडल डेटा आता है रेटिंग स्केल से वो किस टाइप के डेटा की तरह ट्रीट किया जाता है। सो इट इज ट्रीटेड एज एक इंटरवल डेटा। ओके, सो ऑप्शन वे सी विल बी द राइट आंसर, दैट इज इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश स्केल प्लेसेस इवेंट्स इन ऑर्डर। ये स्केल क्या करता है, इवेंट्स को एक ऑर्डर में प्लेस कर देता है। व्हाट इट इज ऑर्डिनरी स्केल दैट प्लेसेस द इवेंट्स इन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash is a list of sources used by the researcher to get information for research report। कि ये list of sources होता है जो कि researcher use करता है अपनी research report से information gather करने के लिए। so इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम bibliography, that is option A। next question, dash is a systematic way of assigning numbers or names to objects and their attributes। एक सिस्टमैटिक वे होती है असाइन करने के लिए नंबर और नेम्स को उनके ऑब्जेक्ट्स और उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको। सो इट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट, इट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी इज प्राइमरीली असेस्ड ऑन। जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च स्टडी होती है कि जो रिसर्च स्टडी की क्वालिटी है वो प्राइमरी किस पे असिस्ट होती है, इट इज असिस्ट ऑन द राइगर विद व्हिच इट वाज कंडक्टेड। जिस राइगर के साथ उसको कंडक्ट किया गया है ये उस पर प्राइमरीली असिस्ट होती है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटेटिव रिसर्च इज। क्वालिटेटिव रिसर्च को क्या बोला जाता है और ये किस पे प्राइमरीली कंसर्न होती है। सो इट इज प्राइमरीली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ फिनोमेना। कि आपका जो फिनोमेना है वो कैसे एक्सप्लोर हुआ है इन डेप्थ में बिल्कुल कंसर्न होती है क्वालिटेटिव रिसर्च, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट एनालिसिस इज अ मैथमेटिकल टूल व्हिच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिग्री टू व्हिच वन वेरिएबल इज लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। कि वो एनालिसिस जहाँ पे हम मैथमेटिकल टूल्स का यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कितना डिग्री से लीनियरली रिलेटेड है। सो देखिए आपको ये मैच भी हो रहा है, like linearly related or correlation or related। okay, so here the answer is correlation analysis is that tool जहाँ पे आप दो वेरिएबल्स को linearly क्या करते हो, कंपेयर करते हो, रिलेट करते हो। ठीक है, कंपेयर नहीं रिलेट करते हो ताकि उसकी एप्लीकेशन डिपेंड कर सके। राइट, सो राइट ऑप्शन विल बी correlation, option B। moving forward with the next question, which of the following was not identified as a major research design। यहाँ पे कौन सा जो मेथड में यहाँ पे मेंशन है कौन सा है जो कि हम आइडेंटिफाई नहीं करते एज अ मेजर रिसर्च डिजाइन। सो इट इज इथेनोग्राफी, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज स्टडी ऑफ स्मॉल डैश स्टडी इज अ स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ द मेन स्टडी। ये जो स्टडी है ये स्मॉल स्केल रेप्लिका होता है मेन स्टडी का। ओके, सो व्हाट इट इज ऑप्शन ए, पायलट स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल्स दैट कंटेन्स डेटा हैव ओनली टू कैटेगरीज ऑफ, जिसमें से दो कैटेगरीज होते हैं जो भी आपका डेटा होता है उसमें उन वेरिएबल्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है टाइपोलॉजी, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a statement of the expected relationship between two or more variable is known as। कि आप जहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हो रिलेशनशिप किसी दो या दो वेरिएबल के बारे में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब आप जस्ट इमेजिन कर रहे हो, दैट मीन्स हाइपोथेसिस, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a complete survey of the population is called। जो कंप्लीट सर्वे होता है पॉपुलेशन उसको क्या बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंसस। प्रीवियसली डिस्कस दिस क्वेश्चन कि जहाँ पे हम किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी पॉपुलेशन के बारे में गैदर करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, वहाँ पे हम क्या बोल रहे थे उस सर्वे को, उसको हम बोल रहे थे क्रॉस सेक्शनल सर्वे। ओके,
पर जहाँ पे हमें पूरे ही सर्वे करना होता है पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, सेंसस, ठीक है। ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के नहीं है, ये कंप्लीट सर्वे होता है, तो दैट इज सेंसस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the population is dash stratified sampling method is used, कि अगर population ये होती है तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, which one, stratified sampling method। तो कैसी होती है population, जब हमारे पास population heterogeneous होती है तब हम ये मेथड यूज करते हैं, which one, stratified sampling method। So option C is the right answer। Next question, conducting surveys is the most common method of generating, कि सर्विस कंडक्ट कराना क्यों कराते हैं, ठीक है, पहले बात तो ये क्यों कराते हैं, ठीक है, तो किस लिए कराते हैं, अपना प्राइमरी डेटा गैदर करने के लिए, जनरेट करने के लिए, ताकि हम उसके बारे में और जान सकें। सो दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, under dash sampling method the samples are selected randomly according to some fixed quota, यहाँ पे जो आप इस सैम्पलिंग मेथड में जो सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं वो नॉन रैंडमली किए जाते हैं और किसी फिक्स कोटा से ही के ही अकॉर्डिंग किए जाते हैं। सो व्हाट इट इज, व्हाट टाइप ऑफ मेथड इट इज, इट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, नॉन रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो अपने सैंपल्स को और किसी फिक्स्ड कोटा के अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट कर रहे हो, ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the greater the sample size the smaller the, कि जितना सैंपल साइज बड़ा होगा उतना ही छोटा क्या होगा, स्टैंडर्ड एरर, दैट इज ऑप्शन ए। which of the following refers to research supported by the measurable evidences, कि ये किस टाइप की जो रिसर्च होती है कि measurable evidences से सपोर्टेड होती है, so what type it is, it is empiricism, okay, that is option B। next question, which of the following is not the source for getting information for exploratory research, कि ये जो सोर्स होता है यहाँ से आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहिए, या फिर ये सोर्स नहीं है गैदर करने का इंफॉर्मेशन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए, तो व्हाट इट इज, कंटेंट एनालिसिस। ऐसे नो कि जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वहाँ पे जो हमारा रिसर्चर होता है उसके लिए वो टॉपिक बड़ा न्यू होता है, ओके, वहाँ पे उसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती उस टॉपिक के बारे में, या बहुत कम नॉलेज होती ही नहीं है, तो उसके लिए कंटेंट एनालिसिस बिल्कुल भी सही नहीं रहता। सो वहाँ पे ये सोर्स हमारा नहीं होता है इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल वैलिडिटी रिपोर्ट्स, इंटरनल वैलिडिटी होती है वो रिफर करती है कि जो researchers degree of confidence, that is option A। next question, the dash validity refers to the degree to which the actual program reflects the ideal, okay, so construct validity is the validity जो कि रिफर करती है वो डिग्री जो कि एक्चुअल प्रोग्राम को रिफ्लेक्ट करती है टू बी आइडियल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a non comparative scale, ये इनमें से जो कौन सा है जो कि नॉन कंपैरेटिव स्केल है, पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर और कांस्टेंट सम और कंटीन्यूअस रेटिंग स्केल, so it is continuous rating scale which is non comparative scale, okay। next question, this is the evidence that the instrument, techniques or process used to measure concept does indeed measure the intended concept, so what it is validity, जो कि एविडेंस देता है एकदम इंस्ट्रूमेंट या फिर जो आपकी टेक्निक है और कोई प्रोसेस है वो मेजर कर रहा है कॉन्सेप्ट को, जो कि इंटेंडेड कॉन्सेप्ट को ही मेजर करती है, ठीक है, एक एविडेंस को एज एविडेंस आप बोल सकते हो इसको, so right option will be validity। next question, is the process of recording the classified facts into rows and columns, so क्या बोलते हैं इसको, जिसमें मतलब वो प्रोसेस जिसमें आप रिकॉर्ड करते हो फैक्ट्स और रोज और कॉलम को एज अ फैक्ट, तो उसको बोला जाता है टेबुलेशन प्रोसेस, ओके।
Next question. The entire domain of statics is divided into descriptive statics or what statics or what type of statics. So जो entire domain होता है statics का वो दो पार्ट में डिवाइड होता है mainly. एक तो descriptive statics में और एक होता है inferential statics. So we have that in option C. So C will be the right answer. That is inferential statics. Rejecting a true null hypothesis is committing जो जब हम एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो तो तब कौन सा एरर आता है सो कौन सा एरर आता है दैट इज टाइप 1 एरर ओके ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन endeavors to explain predict or to control phenomena are the goal of ठीक है ये किसका गोल होता है ताकि आप प्रिडिक्ट कर सको और कंट्रोल कर सको एक्सप्लेन कर सको ये फिल्मों जहाँ पे जो भी हो रहा है तो ये होता है गोल साइंटिफिक मेथड का सो दैट इज ऑप्शन ए so this is it for this video if you like this video please subscribe my channel thank you so much for watching